Hi everyone. Just after 2 days, you're going to write the best exam of your life. NEET PG, start manifesting. Now, जितनी preparation होनी थी, हो चुकी है. From today, you are basically preparing yourself for that day. 3.5 hours. Let me tell you, आपने पूरे 1.5 years या 1 year जितनी भी मेहनत करी हो, that boils down to this 3.5 hours of the exam. If you are not calm, you are not relaxed, you are not patientful, and आप sane नहीं हो उस 3.5 hours के time पे, you can lose the rank. तो मेरी गलतियों से क्या सीखना है एंड आप लोग कैसे उसे बेटर कर सकते हो अपने नीट पीजी में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो please watch it at 2x speed to save your time. So today I'm going to discuss how you are going to attempt the main exam, what are the foremost you should avoid at this time, what is the safe zone for the decent rank, rule out game, what to do on 2nd of August, pressure and anxiety, and the other important details that you should be remembering. तो सबसे पहले attempt कैसे करना है. So the time will start at 9:30. What you have to do is you have to reach at least by 8:30 at all. अपने exam center पे पहुंचना है. सबसे पहले one day before you have to go and see your exam center. Please ये गलती नहीं करनी कि मेरे से exam center miss हो गया. Last year it was my first hand experience where one of my very good friend could not reach the examination center at a time and she was not allowed to give the exam. So you should not do this. So to reach at 8:30, सेकंड को आपको टाइम से सोना है. बट प्लीज रिमेंबर, अगर आप अभी तक 12 बजे 2 बजे 3 बजे सो रहे थे, ऐसा नहीं होगा दैट वन डे बिफोर यू विल बी गेटिंग स्लीप एट 10 PM. प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दिस. आई विल स्टॉप यू टू टेक एनी ऑफ द मेडिकेशंस, क्लोनाज़ेपाम, ज़ोलपिडेम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम. पीपल टेक दिस वन डे बिफोर एंड द नेक्स्ट डे दे आर ऑल सेडेटेड, देयर कंसंट्रेशन लेवल इज गॉन. अगर आप अभी से 1 वीक पहले 2 वीक्स पहले इसको ले रहे हो कंटिन्यूअसली, वेरी गुड. बट प्लीज डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू on 2nd of August. Also, on the day of 3rd August, do not try, अरे मैंने कभी Red Bull नहीं पिया है, लेकिन Red Bull gives me wing. You don't have to drink any Red Bull, more of the caffeine, nothing. जैसा आपका normal lifestyle है, please वैसे ही जाइए और अपना exam attempt करके आइए. Coming back to 2nd of August, please remember, try to sleep early. But if you are not sleeping early, it's fine. The next day, sleep is something that is not going to bother you. Your sympathetic activity will be so high that it will be keeping you concentrated, awake, and fully into those 3.5 hours. So let's start. How are you going to attempt your exam? So the first and the foremost thing, you have 200 questions and 5 sets, जिसमें से कि 40 क्वेश्चन का हर सेट होता है. And for each set you will be getting around 42 minutes. तो 42 minutes है आपके पास 40 questions के लिए and 5 sets है. Please remember, हो सकता है आपका जो पहला सेट आए वो बहुत रफ आए, रफ पैच आए, and you will be totally devastated कि भाई ये क्या हो गया है, मेरा पूरा पेपर खत्म. नहीं, because you are only done with those 40 questions, but due to these rough patch of 40 questions you will be compromising your other 160 questions. Please be mindful. अगर पहला पैच रफ आ रहा है, it's fine. आगे के पैच इजी होंगे, नहीं भी होंगे तो यू हैव टू. जब अगर गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर पत्थरों वाली रोड आती है, क्या करते हो आप? उस तरीके से एक्सेलरेशन देते हो ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो. सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है. आपको लग रहा है कि रफ पैच जा रहा है, पेपर रफ तरीके से जा रहा है, यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी रिलैक्स. सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो सकता है. सो प्लीज बी वेरी काम एंड रिलैक्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर. नाउ प्लीज रिमेंबर, अगर आपका फर्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चंस हैं, 40 में से आपके पहले 10 बहुत अच्छे चले गए, प्लीज डू नॉट ओवर एस्टिमेट ऑल्सो कि अब तो मेरी रैंक पक्की है. एग्जाम करते वक्त कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अब मुझे मेरी सीट पक्की है, मेरे को तो 160 180 करेक्ट करनी है. एग्जाम देते समय एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, आपको पूरा का पूरा उस पर डिवोट होना है. You have to be devoted into that particular question and you don't have to think about anything else. बस वो question और तुम, nothing else. Once you have clicked on that MCQ, fine, just go to the another question. That should be your motto during the entire examination. To get a very good rank, you should always attempt at least 180 plus. And to get a rank below 3000, please attempt 190 plus for sure. You know the competition is very high, very tough. किसी भी हाल में इतने सबको attempt करने हैं. Please do not be in this thing कि यार मैं वही questions attempt करूंगा या करूंगी जिसमें मैं sure हूं, और आप 120 करके आ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है 120 तो पक्का सही होंगे. नहीं होता है ऐसा. Please trust me. You have to attempt more because आपका probability ज्यादा बढ़ जाता है. If you are attempting only 150, आपकी scoring ही 600 से शुरू हो रही है, and उस 600 में से if you get 400, you are not getting a seat. A clinical seat आपके हाथ में नहीं आ सकती है. The competition is very high. So please try to attempt as much as you can.
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नीट पीजी के टाइम पे यू नो दैट अगर आपने कुछ चीज रिव्यू पे डाली है दैट इज एक्चुअली गेटिंग इनटू काउंट. नाउ आई विल टेल यू 5 to 6 इंपॉर्टेंट टिप्स अटेम्प्ट करने के लिए. पहली चीज, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आप अपनी इंस्टिंक्ट पे बिलीव करेंगे. द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज राइट, यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट. बट अगर कोई ऐसा फैक्ट आ रहा है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, प्लीज लीव दैट क्वेश्चन. इफ यू आर आस्क्ड ऑक्सकार्बामेज़ेपिन का थेरेपेटिक इंडेक्स कितना होता है, leave that question. Nobody knows that. Many of the people will not be knowing that. ऐसे questions आपकी रैंक में कोई भी effect नहीं डालेंगे. Second, if there comes any conceptual question, the question comes on megaloblastic anemia. जितने concepts you are knowing from biochemistry, pharma, patho, medicine, pedia, please try to apply everything and try to derive the question. Third important thing, ड्यूरिंग द क्वेश्चन, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग लॉन्ग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज रीड द लास्ट लाइन, सी इफ देयर एनी इमेज और एक्सरे ऑन द हिस्टोपैथ इज गिवन एंड जस्ट हैव अ वेरी क्विक ग्लैंस ओवर ऑल द ऑप्शंस. आफ्टर दैट अगर आपको लगता है, जस्ट इफ दे आर आस्किंग सिंपली व्हाट कुड बी द डायग्नोसिस एंड यू नो दैट इमेज में कुछ स्कल बना है और उसमें कुछ लिटिक लीजन्स हैं, मे बी दिस कुड बी लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस और यू आर डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द मल्टीपल माइलोमा, ट्राई टू हैव अ वेरी ब्रीफ थिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड जस्ट कम टू द डेरिवेशन. खत्म. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अगर आपको लग रहा है इमेज जानी पहचानी है, हिस्टोपैथ की इमेज जानी पहचानी है, क्वेश्चन जाना पहचाना है, प्लीज डू नॉट डू दिस. फोर्थ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, PYQ बायस. आपने बहुत PYQs करे होंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम एज इट वाज आस्क्ड इन PYQ, बट द ऑप्शंस माइट डिफर. सो प्लीज रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ओनली कम टू क्लिक अ ऑप्शन. प्लीज डू नॉट बी इन अ हरी कि यार ये तो मैंने PYQ में करा है, मैंने GTs में बहुत बार किया है, इसका आंसर यही होता है. नहीं, डू नॉट बी इनटू दैट बायस मोड. जब कभी भी एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, प्लीज लीव ऑल द बायसेस आउटसाइड. आपके सामने जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, दे आर फ्रेश, दे आर टोटली न्यू पेशेंट्स हु आर कमिंग टू योर OPD and you are just diagnosing them on the basis of those 4 options. See how easy it is, and this is one thing that is always told by Zanam ma'am. She used to tell this कि आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, just remember that you are going to a OPD and 200 पेशेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास 4 दवाइयां हैं जो ऑप्शंस के फॉर्म में आ रही है, आपको बस एक चीज को चूज करना है. See how beautiful line it. Fifth very important thing I will like to tell you about the rule out thing. See, many of us get confused कि rule out कब करना है, किन चीजों को करना है, कैसे करना है. So for that I would like to tell you one thing. So at any point of time if you feel कि आपने 40 में से 32 प्लस आपके पक्का सही है, तो जो बाकी 5-6 क्वेश्चन जिसमें आप confused हो and you are able to rule out any one option, please try to give it a shot. But at any point of time आपको लग रहा है कि 26 से 35 ही करेक्ट हो पा रहे हैं, then अगर एक को रूल आउट कर रहे हो, do not give it a shot. अगर 2 को रूल आउट कर पा रहे हो, give it a shot. But if you feel that it is less than 20, if the questions are only that you are sure is equals to less than 20, then please do not give it a shot. Leave that question and move forward. वो चीज को आप compensate करो अपने अगले sections में. Is that fine? Now, while doing the sections, please remember first section से fifth section में आने तक energy might die. और लास्ट में ऐसा होता है, मुझे एग्जाम निपटाना है. ऐसा नहीं करना है. एग्जाम को देना है. यू हैव टू गिव द एग्जाम डिवोटेडली. जितनी डिवोटेडली प्रिपरेशन करी है, उतनी डिवोटेडली वो 3.5 आवर्स बैठ के एग्जाम देना है, निपटाना नहीं है. व्हाट हैपेंस, इट इज यूजुअल, यू आर गिविंग एन एग्जाम, कंसंट्रेशन स्पैन होता है, देन प्लेट्यू आता है और धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है. ड्यूरिंग 4th and 5th सेक्शन आपका दिमाग सबसे वीक चलता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आप बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर सकते हो. व्हाट इफ अगर आपका सबसे ज्यादा रफ पैच 5th पैच हो, देन जितने पहले किए थे और लास्ट वाला जो है जो बहुत रफ है, पहले तो इजी हो गया लेकिन लास्ट में अगर कंसंट्रेशन होता तो और अच्छा आ सकता था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज you should be present in the exams. You should be very careful कि आपको 5 बार सेम कंसंट्रेशन सेम अटेंशन के साथ एग्जाम देना है. तो आफ्टर एवरी सेट 1 मिनट विल बी लेफ्ट, वो आपका दिखेगा. उस लास्ट के 30 सेकेंड्स में हर सेक्शन के बाद लंबी लंबी सांसें लो, बॉक्स ब्रीदिंग ट्राई करो. सांस लो, उसको रोको एंड देन छोड़ दो. दिस इज व्हाट इज बॉक्स ब्रीदिंग. ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ सो दैट यू आर फ्रेश फॉर द अनदर सेट. ट्राई टू हैव सिप्स ऑफ वाटर बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस. सो दिस इज व्हाट you have to practice. During every question, before jumping to any conclusion, please see all the 4 options. Without seeing all the 4 options, please do not jump to any conclusion. Exam करते हुए कभी भी ऐसा लगे मुझसे नहीं हो रहा है, 2 things you have to do. Close your eyes,
First thing, see how many sacrifices, how much sacrifices have you made during this last 1 to 1.5 years, or maybe more than that. And the another thing, about your parents, about your family who will be waiting outside for you in a hope that you will be coming there with full of happiness कि yes, मम्मी पापा या whatever, मेरा एग्जाम अच्छा गया है. So please, for your sacrifices and for their sacrifices, you have to sustain those 3.5 hours. करना है. बहुत दूर आए हो इसलिए नहीं कि वो 3.5 घंटे निपटा के आ जाओ. ये सारी चीजें सब बताएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है. एट लास्ट तुम हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें उन सारे के सारे 200 दुश्मनों से लड़ना है. नेक्स्ट थिंग, फोमो. इस टाइम पे काफी लोगों को बहुत फोमो है. सबसे बड़ा फोमो इस टाइम पे जो बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज बीटीआर. मैंने बीटीआर नहीं किया. इट्स ओके. It's okay. Many of the people even without doing BTR, they have achieved a rank of less than 50. It depends on you, not on the faculty or not on the platform जिससे आपने पढ़ा है. ठीक है. So please do not be in a FOMO. कहीं पे भी कुछ भी कंटेंट डिफरेंट नहीं है. हर किसी ने अपने तरीके से बेस्ट पढ़ाया है. बी इट एनी प्लेटफॉर्म, बिलीव इन योर प्लेटफॉर्म, वट एवर इट इज, बी इट मैरो, डैम्स, भाटिया, वट एवर. सो इट totally depends on you how you are going to approach. Please do not blame any platform or any faculty. उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं है, मेरे को फोमो हो रहा है. भाई मेरे पास आशीर्वाद क्लास का कोई नहीं है, मेरे पास मेगा नीट बीटीआर नहीं है, मेरे पास एलआरआर की वीडियोस नहीं है. नहीं, आपके पास जो है वो सबसे बड़ी आपकी ताकत है. आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, आपके सैक्रिफाइसेस एंड आपके डिसिप्लिन है. प्लीज 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 बिलीव इन योरसेल्फ बिफोर बिलीविंग और ट्रस्टिंग समवन एल्स. इतने दिन से जो नहीं पढ़ा है उसका लास्ट में फोमो करके कुछ नहीं होगा. एंजाइटी आएगी, एंजाइटी आएगी, आपकी जो ब्रेन की लिमिट है वो बढ़ जाएगी और जो चीजें आती भी हैं वो गलत कर दोगे. नेक्स्ट, people currently are asking me, sir, I'm very anxious, can I take this medicine, can I take that medicine? No. If you haven't taken any medicine before, you can't take, and if you want to take, please go and consult a psychiatrist. Now the third thing is, people are asking, sir, now I'm currently blank. Good, you're blank, because if you're blank, then on that day ना bias नहीं हो. सबसे बेस्ट चीज है उन लोगों के लिए जो blank खाली मन से पेपर देने जाते हैं, because at during that time you will just have the knowledge of those 200 questions. That is what you want currently. Be blank. I will say everyone go blank, go numb. अगर आपको under 3000 चाहिए, you should at least attempt 194 plus for sure. 194 plus attempt करके आओगे अगर under 3000 rank चाहिए. If you want any of the 5000 to 3000 10,000 of rank, you should attempt 180 plus. Okay, then competition is rising. Simply competition is rising. You should at least go for 160 plus to have a decent rank. I'm not saying कि 194 plus में you will get a 3000 rank, but depending upon the आजकल का competition and last year का competition, I feel that the cutoff might go high also. So we never know. So you have to be safe. हर कोई बंदा 180 से 185 प्लस अटेम्प्ट करके आओ, आपकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर थिंग कि क्या क्वेश्चन छोड़ने हैं क्या नहीं, दैट आई हैव डिस्कस्ड. अगर आपको लग रहा है एग्जाम स्मूथ जा रहा है, देन डू नॉट लीव सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, हर सेक्शन में आपको अलाउड है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ना. व्हाट टू डू ऑन 2 अगस्त? फर्स्ट थिंग, डू नॉट चेंज योर शेड्यूल. अचानक से आप 3-4 बजे तक सो रहे थे, अचानक आप सोच रहे हो 9 बजे सोऊंगा, ऐसा नहीं होगा. सो डू नॉट, क्योंकि आप 9 बजे सोने को जाओगे 3-4 बजे ही नींद आएगी, ऑलरेडी उस समय तक पैनिक हो जाएगा. 3-4 बजे तक सो रहे हो, 3-4 बजे तक ही सो पाओगे. वेरी सिंपल. सेकंड, डू नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट योर स्लीप. थर्ड, डू नॉट बी इन अ थिंग कि मैं तो कोई नया मेडिकेशन शुरू करूंगा ताकि मेरा अगले दिन सारा एंजाइटी, सारा ट्रबल लूज हो जाए. नहीं. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर का खाना कोई नहीं खाएगा, मोमो, चाउमीन कुछ भी नहीं खानी है. यू हैव टू ईट होम कुक्ड फूड. सिंपल, जो अभी तक खा रहे हो वही चीज खानी है. फिफ्थ, रिवीजन पैसिवली होना चाहिए. कल 2 अगस्त है, सुबह आराम से उठो, दिन में अगर सोना है सो जाओ. बहुत पैसिवली पढ़ना है. whatever you want to flip, try to flip all those images. Apart from that, no new study. कुछ नया नहीं पढ़ना है. Yes, the new BNSs and the newer drugs you can just go through, but do not go very deep. 1-1.5 घंटा दो ये BNS नई ड्रग और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाइज होते हैं इनके लिए 1.5 घंटे में इसे वाइंड अप करो. कल हर कोई 19 सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जाएगा. 19 सब्जेक्ट में से कुछ चेकलिस्टेड टॉपिक्स आप सभी को देख के जाने. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन 2 अगस्त. इज दैट क्लियर? प्रेशर एंड एंजाइटी आएगी आज से लेके जब वो 3 घंटे की शुरुआत होगी 9-9:15 तक. यू विल बी इन प्रेशर एंड एंजाइटी, बट ड्यू टू दिस प्रेशर एंड एंजाइटी, डू नॉट ruin your game of those 3.5 hours. So to relieve this, what you can do is, from today
2 दिन बचे हैं, नथिंग मोर यू हैव टू डू। 15 मिनट्स का ब्रेक लो, हर 1.5 to 2 आवर्स के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मी टाइम। जस्ट hear some music, go on a walk, talk to your parents, talk to your good friends who literally care about you, or to your partners, okay, just for 15 minutes, nothing more than that. Apart from that, try to have this box breathing technique. You can easily search what it is, क्योंकि ये एंजाइटी सिर्फ एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी है। वंस द एग्जाम इज गॉन, एंजाइटी इज गॉन, सिंपल। तो आपको बस अपने आप को समझाना है, ट्रेन योर ब्रेन, दैट ब्रेन जस्ट फॉर अनदर 30 आवर्स यू हैव टू बेयर मी, फिर तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा, सिंपल। फाइनली द अदर इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके सब लोग जाएंगे, एंड ब्रेकफास्ट में नॉर्मल खाना खाना है, छोले भटूरे नहीं खाने हैं, राजमा चावल नहीं खाना है, वेरी प्लेन खाना जो आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट में खाते हो, प्लीज गो फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मम्मी लोग दही चीनी मिला के खिलाते हैं, येस देयर इज अ सिग्निफिकेंस, यू नो दैट जितना ग्लूकोज जाएगा, ब्रेन टोटली ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, तो मीठा खा के जाना, ठीक है। डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ शुगर, सो दैट यू नो बाद में आप बिल्कुल सो जाओ, दिमाग ही ना चले। अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स विद गुड अमाउंट ऑफ शुगर यू शुड टेक। प्लीज जो लोग डाइटिंग करते हैं या एनीथिंग, जो भी अभी इस टाइम पे जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, प्लीज उस दिन खाना अच्छा खा के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी इज आई वाज हैविंग द इवनिंग शिफ्ट, मैंने मॉर्निंग से लेके कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक दिस ग्रीन लेस का पैकेट खाया था, एंड ड्यूरिंग द एंटायर 3.5 आवर्स मेरा दिमाग अपने पेट में था, क्योंकि पेट से आवाज आ रही थी। सो प्लीज डू नॉट डू दिस, हैव समथिंग, ईट सम, स्टार्ट मैनिफेस्टेशन। अपने बारे में सोचो, अपनी सीट के बारे में सोचो, आप इतनी दूर आए हैं, आपने इतना सेक्रीफाइस किया है, किसी एक कारण की वजह से किया है, उस कारण को पहचानो। अभी जो हो गया, 120 आ रहे थे, नहीं सोचना है, 170 आ रहे थे, नहीं सोचना है, यू हैव टू बी ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड। whatever is your fate will be decided on 3rd of August. Please do not get carried away by your GT marks, by your subject test marks, nothing. And the most important thing, either write it somewhere or keep it as a wallpaper. You have come so far. I am going to give the best exam of my life, and after that everything will be beautiful again. जो भी मैंने sacrifices किए हैं, that has come to an end. 3rd अगस्त को 12:30 के बाद जब घर आओगे, उसको देखना, खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। दिस एग्जाम में ना हम मेडिकोज बहुत कुछ डिवोट कर देते हैं, हमारी नींद, हमारी बॉडी वेट, हमारे फैमिली रिलेशंस, बट डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? यू नो, लास्ट में इट फील्स दैट सेटिस्फेक्शन, जब आप एग्जाम दे के आते हो ना, जस्ट जो जहां पे छूटा था ना, उसको वहीं से आगे खत्म करो। ये एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द एंटायर लाइफ। सो विद दिस, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से करके आना, यू ऑल आर लायंस, इतनी दूर आए हो, अच्छा करके जाओगे, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एवरी वन ऑफ यू। एग्जाम फाड़ के आना, बाय।